امیر اہل سنت سے صدقات کے بارے میں 25 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے صدقات کے بارے میں 25 سوال جواب پر یا سن لے، اس کے حلال رزق میں برکت عطا فرما اور اسے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: صدقہ اور خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ جواب: اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے اللہ کی رحمت سے اس میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ رد ہے، اس میں قبولیت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نے پیسے دیے تو ثواب کی امید نہیں ہے۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی لوگ پیسے دیتے ہیں۔ اگر لوگ دیکھ نہیں پاتے تو انہیں سناتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اور اتنا دیا ہے۔ اگر سنانے میں یہ نیت ہے کہ سامنے والے کو بھی رغبت ملے تو یہ اچھی نیت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن صرف اس نیت سے بتانا کہ یہ مجھے سخی بولیں، دلیر بولیں تو یہ ریا ہے، اس میں ثواب کی امید نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں غیر کا عمل دخل نہ ہو تو اس میں ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ اخلاص کی اور بھی بہت سی تعریفیں ہیں، البتہ اگر کسی کام میں غیر کا عمل دخل اللہ کی رضا کے لیے بھی شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک بندے کی ہم نے اس لیے مدد کی تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس پر مجھے ثواب ملے، تو یہ بھی اللہ کی رضا والا کام ہو گیا، حالانکہ اس میں بندے کی رضا بھی شامل ہے، لیکن اس بندے کی رضا سے اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہو گیا۔ سوال: جب آدمی کی عمر مقرر ہے تو صدقہ دینے سے عمر کیسے بڑھے گی؟ جواب: اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بندہ کتنی عمر میں فوت ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہونا ہوگا تو ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام قدرت ہے، لیکن اللہ پاک کے علم میں ہونے کا یا اللہ پاک کی مشیت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے۔ اگر بیمار ہو تو علاج نہ کروائے اور سوچے کہ صحت ملنی ہوگی تو مل جائے گی، ویسے بھی شفا تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ بات سن کر دوا نہیں چھوڑے گا، دوا سب ہی کھائیں گے۔ ہاں، کتابوں میں متوکلین کی ایک جماعت کے واقعات لکھے ہیں جو علاج نہیں کرواتے اور اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ اب بھی ہوں، مگر آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے۔ بہرحال روایتوں میں مختلف اعمال کی برکت بیان ہوئی ہے کہ کس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور کس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 560 پر مسئلہ نمبر 6 حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں زیادتی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے، کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی، اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ سوال: صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ جواب: صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں صدقہ کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جبکہ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے جس کا معنی بھلائی ہے۔ البتہ اردو میں مالی مدد کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جیسے جب فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو یہ خیرات کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی اردو کے لحاظ سے خیرات ہی ہوتی ہے۔ سوال: صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صدقے کے حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالے بکرے یا کالے مرغے پر ہاتھ پھروا کر یا کوئی بھی چیز 7 بار سر پر سے گھما کر دی جائے تو وہی صدقہ ہے۔ اس طرح کے انداز میں کوئی چیز دینا صدقے کے ساتھ ساتھ ٹوٹکا بھی ہے۔ دراصل ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں دی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے یا بطور چندہ دیا جائے، وہ سب صدقہ ہے۔ سوال: بعض لوگ گوشت یا زندہ مرغ اپنے اوپر سے وار کر جنگل میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا،
क्या ये दुरुस्त है? जवाब: सदक़े की कई इक़साम हैं। फ़र्ज़ सदका जैसा कि ज़कात, वाजिब सदका जैसा कि फ़ितरा और दीगर सदक़ात वाजिबा, नफ़ली सदका जैसे किसी गरीब को सवाब की नीयत से रकम देना, जिसे उर्दू में खैरात कहा जाता है, ये भी सदका ही है। इसके अलावा सदक़े की बासूरतें और भी हैं, जैसा कि जान का सदका देना वगैरह। अगर जान का सदका देना हो तो फतावा रज़विया शरीफ में है कि जान के बदले यूं जान का सदका दिया जाए कि हलाल जानवर ज़िबा करके दे दिया जाए। लिहाजा जान का सदका निकालने के लिए बकरा या मुर्ग ज़िबा करके देना ज़्यादा अच्छा है। अगर जिंदा देने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह रकम, कपड़ा और अनाज वगैरह चीजें भी सदके में दी जा सकती हैं। सवाल में जो सदके की सूरतें बताई गई, ये बाबाजी लोगों के ढकोसले होते हैं, इन्हें इख्तियार करने से बचना चाहिए। सदका निकालने के लिए जिंदा मुर्ग फेंक देना या बकरे की सिरी या पाए कब्रिस्तान के चौराहे में दफन करना माल को जाया करना है, और ऐसा सदका जिसमें माल को जाया किया जाए हराम है। रही बात पीछे मुड़कर ना देखने की, तो मुझे लगता है कि ये बाबाजी लोगों पर तासुर डालने के लिए बोलते होंगे कि मुर्ग फेंक देना और पीछे मुड़कर ना देखना। नीज ये भी मुमकिन है कि बाबाजी ऐसी जगह मुर्ग या बकरा फेंकवा रहे हों कि जहां पहले से ही बाबाजी के बंदे मौजूद हों, कि जैसे ही बकरा या मुर्ग छोड़ा जाए वो इसे पकड़ कर ले जाए। लिहाजा बाबाजी इस खौफ से कि अगर मुर्ग या बकरा छोड़ने वाले ने मुड़ कर देख लिया तो कहीं मेरा भांडा फूट ना जाए, इसलिए सदका निकालने वाले को ये कहकर खौफजदा कर देते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और अगर देखने पर कुछ हुआ तो मुझे नहीं बोलना। बात सूरतों में मुड़कर ना देखना बतौर मुहावरा भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये कहा जाता है कि राह खुदा में दिया तो मुड़कर मत देखो। इससे मुराद ये होता है कि राह खुदा में देने के बाद ये तमन्ना ना करो कि मुझे वापस मिल जाए या मैं वापस ले लूं वगैरह। बहरहाल बाबाजी जो बोलते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो, इसमें इनकी क्या हिकमत है मुझे मालूम नहीं, और इससे मुतल्लिक जो बातें मैंने जिक्र की ये बतौर तफन्नुन है। सवाल: क्या घर में मौजूद सदके की रकम इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब: अगर नफल सदके की नीयत से घर में रकम रखी थी कि ये रकम राह खुदा में खर्च करूंगा या हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की न्याज करूंगा, तो ऐसी सूरत में वो खुद उस रकम का मालिक है। उसके लिए बेहतर यही है कि जिसने काम की नीयत से रकम रखी है उसी में खर्च करे, लेकिन अगर वो रकम अपने किसी काम में इस्तेमाल करता है तो भी कोई हर्ज नहीं। इस मौके पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ्ती साहब ने फरमाया, आजकल जो हमारे यहाँ सदका बॉक्स रखे जाते हैं, अगर उनमें सिर्फ अपनी ज़ाती रकम हो तो चाहे वो सदका नाफिला हो या सदका वाजिबा, दोनों सूरतों में जब तक सदका अदा नहीं किया उस वक्त तक रकम इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। सवाल: हलाल और हराम की कमाई को अगर मिक्स करके सदका करें तो क्या वो कबूल हो जाएगा? जवाब: हलाल हलाल है और हराम हराम है। अल्लाह करीम पाक है और पाक माल को ही कबूल करता है। हराम माल तो किसी से छीना हुआ या रिश्वत का होता है, लिहाजा जिससे ये माल छीना या लिया है उसे वापस देना लाजिम है। जिससे लिया था अगर वो फौत हो गया हो तो उसके वरसा को देना लाजिम होगा। अगर उसका कोई वारिस नहीं मिल रहा या जिससे लिया था वो गायब हो गया या पता ही नहीं कि किससे लिया था, तो अब वो माल सदका करना जरूरी है। इसी तरह किसी से सूद लिया है तो उसे भी किसी शरई फकीर पर सदका कर दे कि सूद भी कतई हराम है, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं कि जिससे लिया है उसे वापस करे, बल्कि जिससे लिया है उसे वापस करना बेहतर है। माले हराम सदका करते हुए सवाब की नियत भी नहीं कर सकते। याद रहे, हराम माल सदका करते हुए सवाब की नियत नहीं की जा सकती। अलबत्ता जिसने हुक्म शरीयत पर अमल किया, यानी शरीयत ने हराम माल को वापस करने या किसी शरीफ फकीर पर सदका करने का हुक्म दिया है, तो इस हुक्म पर अमल करने की वजह से सवाब की उम्मीद है। लेकिन जो माल उसने दिया है उस पर सवाब की नियत नहीं की जा सकती। बाज लोग सूद का पैसा बगैर सवाब की नियत के इस्तंजा खाना बनाने में लगाते हैं, ये भी जायज नहीं है। सवाल: सदका किस तरह किया जाए जिससे बीमारी दूर हो जाए? जवाब: आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जान का सदका जानवर जैसे बकरा या मुर्गी वगैरह ज़िबा करके देना बेहतर है। चनाचे फतावा रज़विया में है, शीरनी यानी मीठी चीज या खाना फुकरा को खिलाएं तो सदका है, और अकारिब यानी रिश्तेदारों को खिलाएं तो सुलह रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव है।
اور अहबाब यानी दोस्तों को खिलाए, तो ज़ियाफ़त यानी इसकी दावत है, और ये तीनों बातें यानी फ़कीर को खिलाना, रिश्तेदारों को खिलाना और दोस्तों को खिलाना मौजब नज़ूल रहमत यानी रहमत नाज़िल होने, दफ़ा बलाओ मुसीबत यानी बलाएं और मुसीबतें दफ़ा होने का सबब है। मज़ीद फरमाते हैं, यही हाल बकरी ज़िबा करके खिलाने का है, मगर तजुर्बे से साबित हुआ है कि जान का सदका देना ज़्यादा नफ़ा रखता है। यानी बकरी ज़िबा करके खिलाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है और बलाएं तेज़ी से जाती हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं कि खुद मरीज़ ज़िबा करे, बल्कि जिसे जानवर दिया इससे भी कहा जा सकता है कि वो जानवर को ज़िबा कर दे। सवाल, क्या मदनी एहतियात बॉक्स में 11वीं शरीफ की नीयत से रकम डाल सकते हैं? जवाब, जी हाँ, मदनी एहतियात में 11वीं शरीफ यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब की नीयत से रकम डाल सकते हैं, बल्कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब की नीयत से रकम डालेंगे तो सवाब भर जाएगा। अलबत्ता इसमें ज़कात की रकम नहीं डाल सकते। सवाल, क्या पौधे लगाने के फ़ज़ाइल भी हैं? जवाब, जी हाँ, अहादीस मुबारक में पौधे लगाने के फ़ज़ाइल भी हैं। पौधे लगाने के फ़ज़ाइल पर 3 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 1, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंद या इंसान या चौपाया खाए, तो वो इसकी तरफ से सदका शुमार होगा। नंबर 2, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया, यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नज़दीक इस लगाने वाले के लिए सदका है। नंबर 3, जिसने किसी जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई घर बनाया या जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई एक भी इसमें से नफा उठाता रहेगा, तो इस लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सवाल, मस्जिद बनाने की क्या फजीलत है? जवाब, मस्जिद बनाना सदका जारिया है। मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में आली शान महल अता किया जाएगा। मस्जिद बनाने वाले को मिलने वाले सवाब का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मस्जिद क़यामत तक के लिए मस्जिद होती है, और जिसने मस्जिद बनाई होगी उसे क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा जो मुखय्यर हजरात हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मस्जिद ज़रूर बनाएं, जो इनके लिए सदका जारिया हो सके। मस्जिद बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि करोड़ों रुपए खर्च करके खूब तज़य्युन और आराइश के साथ ही मस्जिद बनाई जाए, बल्कि चंद लाख में भी मस्जिद बनाई जा सकती है। बाज़ इलाकों में ज़मीन की कीमत बहुत कम होती है और बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा, तो जिसकी जितनी गुंजाइश हो, वो उसी के मुताबिक ज़मीन खरीद कर मस्जिद बनाए। मस्जिद ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां आबादी हो। जंगल या बेयाबान में मस्जिद बनाना जायज़ नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी ने जंगल, बेयाबान या किसी वीराने में मस्जिद बनाई, तो वहाँ मस्जिद की नीयत करने के बावजूद वह मस्जिद नहीं कहलाएगी। नीज़ इस पर लगने वाली सारी रकम भी ज़ाया हो जाएगी और आबादी ना होने की वजह से वो इमारत जानवरों का ठिकाना बन सकती है। हाँ, अगर किसी ऐसे इलाके में मस्जिद बनाई जहाँ मस्जिद बनाते वक्त तो आबादी थी, मगर बाद में वो इलाका वीरान हो गया, तो वह जगह बदस्तूर मस्जिद ही रहेगी, क्योंकि जब किसी जगह मस्जिद की नीयत कर ली जाए तो वो क़यामत तक के लिए मस्जिद हो जाती है। सवाल, सदका छुपा कर देना अफजल है, लेकिन बसा औकात भरे इज्तिमा में कहा जाता है। क्या आप नियत कर लें या कोई ऐलान कर दें, तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जवाब, सदका देने की बहुत मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कहीं छुपा कर देना अफजल होता है, तो कहीं सबके सामने देना अफजल होता है। सदका छुपा कर देने के अपने फ़ज़ाइल हैं कि छुपा कर सदका देना अल्लाह पाक के गज़ब को ठंडा करता है। यूं ही एलानिया सदका देने के अपने फ़ज़ाइल हैं। मसलन अगर किसी ने सबके सामने इसलिए सदका दिया कि दूसरों को भी तरगीब मिले, दूसरों का भी देने का जज्बा बढ़े, तो जाहिर है कि ये सवाब का काम है। हाँ, अगर किसी ने सदका इसलिए जाहिर करके दिया कि लोग मुझे सफ़ी और दलील समझे, तो इसने गलत काम किया, क्योंकि इबादत से किसी के दिल में अपना एहतराम, अपनी इज्जत बनाने वाला रियाकार और जहन्नम का हकदार है। हर एक अपनी नीयत पर गौर कर ले कि वो किस नीयत से अलियुल ऐलान सदका और खैरात कर रहा है। याद रखिए, सदके के लिए ना तो ऐसा काला बकरा देने की ज़रूरत है जिसमें एक भी बाल सफ़ेद ना हो, न ही काली मुर्गी को सर पर से घुमा कर देने की हाजत, बल्कि जो भी अल्लाह पाक की राह में दिया जाए वो सदका है। सवाल, सदका देना अल्लाह पाक को कर्ज देने की तरह है, ऐसा कहना कैसा है? जवाब, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के करीब बैठे हुए मुफ्ती साहब ने फरमाया, कुरान पाक में है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, इसकी तफसीर अल्लाह पाक की राह में खर्च करना है। ये कर्ज के अंदर आता है। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, ये अल्लाह पाक का करम है कि खुद ही देता है और खुद ही इसकी राह में खर्च करने पर सवाब और जन्नत के वादे फरमाता है। हम किसी को कुछ देंगे
तो ना जाने हमारे जहन में क्या क्या होगा। लेकिन अल्लाह पाक की शान देखो कि अपनी शान करीमी से खूब नवाजता है। सवाल, परिंदों को सदके का गोश्त खिलाना कैसा? जवाब, बाज लोग चील कौवों को सदके की नीयत से लुटा लुटा कर गोश्त खिलाते हैं। ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। सवाल, कर्ज हंसना किसे कहते हैं? जवाब, कर्ज हंसना के बारे में हमारे यहाँ अवाम में ये मशहूर है कि कर्ज हंसना वो होता है कि जिसे देकर भूल जाओ। अगर मकरूज देना चाहे तो दे दे और अगर ना देना चाहे तो ना दे। ये कर्ज हंसना की अवामी तारीफ है। हालांकि हर कर्ज हंसना यानी अच्छा कर्ज होता है जो मुसलमान को इसकी खैरख्वाही की नीयत से दिया जाए और सूद से पाक हो। इस मौके पर मदनी मुज़ाकरे में शरीफ मुफ्ती साहब ने फरमाया, कर्ज हंसना की एक तफसीर सदकात वाजिबा के अलावा नफली सदकात के साथ की गई है। मसलन नफली सदका करना, अपने महारिम पर खर्च करना और जिनका नफका लाजिम हो इन पर खर्च करना वगैरह। बाज़ उलमा के नज़दीक हर वो माल जो अल्लाह पाक की राह में खर्च किया जाए इसे कर्ज हंसना कहते हैं। सवाल, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की माली मदद करता है और इन दोनों के अलावा किसी भी तीसरे शख्स को इसका इल्म नहीं होता तो क्या इसको पोशीदा सदका कहा जाएगा या लेने वाले के भी इल्म में लाए बगैर दिया जाए तो पोशीदा सदका कहलाएगा, जैसे किसी नाबीना को रकम दे दी जाए? जवाब, वाकई ये एक मसला है कि पोशीदा की तारीफ क्या है और किस तरह देने को पोशीदा कहा जाएगा। एक को भी पता ना चले, शायद नफ्स को ये गवारा ना हो, किसी ना किसी को तो बता ही देते हैं। मसलन कहेंगे, मैंने इलियास के हाथ में रकम देनी है, इस तरह मुझे तो पता चलेगा कि इसने 2 लाख रुपए दिए हैं। या किसी को बताएंगे कि किसी और को मत बताना कि मैंने कितनी रकम देनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए की रकम तो फौरन आई तो मैं अपने करीबी शख्स को दूं और इससे कह दूं कि ये फैजान मदीना में दे दो और मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन इस सूरत में भी जिसको दे रहा हूँ इससे पोशीदा नहीं रहेगा। अगर यूं कहा जाए कि ये रकम फैजान मदीना के चंदे बॉक्स में डाल देना या काफिलों की मद में जमा करवा देना और इसको बताया ना जाए कि ये रकम किसकी तरफ से है तो वो ये समझेगा कि शायद ये किसी ने दी होगी। इस तरह हिकमत अमली से भी रकम छुपा कर दी जा सकती है। यूं ही खामोशी से खुद ही चंदे बॉक्स में रकम डाली जा सकती है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के करीब बैठे हुए मुफ्ती साहब ने फरमाया, पोशीदा सदका देने वाली बात अर्श के साए में जगह मिलने वाली हदीस में की गई है। वो इस तरह है कि सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टे हाथ को मालूम ना हो। पोशीदा का आमतौर पर यही मायने होता है कि किसी भी दूसरे को मालूम ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आए के बताना पड़ेगा और इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मसलन रकम किसी ऐसे शख्स तक पहुंचानी है जिस तक ये खुद नहीं पहुंचा सकता तो ऐसे शख्स को दे दे जो मुतल्लिका शख्स तक पहुंचा दे या इसको ये बता दे कि इसको पता ना चले कि किसने दी है, तो उम्मीद है कि ये भी पोशीदा सदके में ही आएगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जाहिर है अगर खड़े होकर ऐलान करता है कि मैं 1 लाख रुपए पेश कर रहा हूँ और इसकी रियाकारी की नीयत ना हो तो ये भी जायज़ है, अगरचे ये ऐलान पोशीदा नहीं कहलाएगा मगर इसमें सवाब मिलने की उम्मीद मौजूद है। अगर ऐलानिया इसलिए कर रहा है कि ये खुद ऐसा शख्स है जिसे देखकर दूसरों को तरकीब मिलेगी और वो भी कुछ ना कुछ रकम राह खुदा में देंगे और दिखावा मकसूद नहीं है, तब भी कोई गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब ही की उम्मीद है। जिस तरह इखलास की कैफियत अफराद के एतबार से मुख्तलिफ होती है, क्या सदका वगैरह पोशीदा रखने के एतबार से भी ये कैफियत मुख्तलिफ होंगी? जैसे रकम देने वाला ये हीला करे कि पहले किसी को ये रकम वैसे ही दे दे और फिर इससे वापस लेकर सदके के लिए दे दे और ये कहे कि ये रकम मुझे किसी ने दी थी। इसी तरह अगर यूं कर ले कि जिसको देना है वो नमाज पढ़ रहा हो तो इसकी जूतियों के पास रकम रख दे या पाँव के पास रख दे या इसके घर में डलवा दे, जैसा कि बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम के ऐसे अमाल होते थे। जवाब, किताबों में बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम के ऐसे अंदाज लिखे हुए हैं, लेकिन आज अगर किसी की जूतियों में इस तरह कुछ रखेंगे तो बेचारा सोच में पड़ जाएगा, पता नहीं ये क्या है। इसी तरह किसी के घर में डालेंगे और इसके घर में कोई मेहमान आए तो वो समझेगा कि शायद ये मेहमानों की गिर गई है और वो इसको नुक्ता समझ बैठेगा। बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम के बारे में जो लिखा है कि ये लोग घर में डाल जाया करते थे तो हो सकता है वो लोग इसके साथ चिट्ठी पर लिख कर भी रखते हैं। नीज किसी नाबीना को भी सदका दिया जा सकता है। अगर कोई फैजान मदीना में देना चाहे तो यहाँ मौजूद मुख्तलिफ चंदा बॉक्स में भी डाल सकता है। जाहिर है अगर खामोशी से कुछ रकम डालेगा तो किसी को क्या पता 100 का नोट डाला है या 1000 का, तो यूं चुपचाप रकम दी जा सकती है।
अमूमन ऐसा होता नहीं, कम अज कम किसी के हाथ में वो रकम दी जाएगी ताकि इसको तो मालूम हो कि ये मालो दौलत मैंने दिया है। वाकई रियाकारी और दिखावा ऐसा नस नस में बसा हुआ है कि जब तक एक ना एक को पता ना चल जाए मजा ही नहीं आता। अल्लाह पाक इखलास नसीब फरमाए, आमीन। सवाल, नफली सदका किन लोगों को देना चाहिए? जवाब, किसी गरीब रिश्तेदार को दे दे। अगर किसी सैयद साहब को देना चाहे तो उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि नफली सदका उन्हें दिया जा सकता है। जिनको सदका दें उन्हें ये कहना जरूरी नहीं है कि ये सदका या खैरात है, क्योंकि हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। अगर आप चाहें तो दावत इस्लामी के सदका बॉक्स या लंगरे रज़वियात के बॉक्स में भी नफली सदका डाल सकते हैं, क्योंकि हमें सारा साल ही इसकी ज़रूरत रहती है। और रमज़ान में तो सहरी और अफ्तारी की मद में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये बात याद रहे कि सदका बॉक्स या लंगरे रिजविया की मद में ज़कात के पैसे नहीं दीजिएगा, वरना आपकी ज़कात ज़ाया हो जाएगी। अपनी जेब खर्च में से हलाल और सुथरा माल नफली सदके में दीजिए। राह खुदा में देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। चाहे तो अपनी आमदनी का 1% यानी 1% ही नफली सदके के लिए मुकर्रर कर लीजिए। अल्लाह पाक तौफीक दे तो फीसद में इजाफा कर लीजिए कि जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि अपनी जेब खर्च में से कोई हिस्सा मुकर्रर करके नफली सदका दिया करें। इसके लिए घर में सदका बॉक्स भी रखा जा सकता है। यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि सदका बॉक्स या लंगरे रिजविया की मद में ज़कात के पैसे नहीं दिए जाएंगे, वरना वो ज़ाया हो जाएंगे। सवाल, सदका करके लोगों को बताना कैसा? जवाब, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम सदका छुपा कर दिया करते थे ताकि किसी को पता ना चल सके। बल्कि बाज़ औक़ात जिसको सदका दिया जा रहा है उसे भी मालूम नहीं होता था कि मुझे किसने सदका दिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाले बाकमाल के बाद ये इंकशाफ हुए कि आप फुला फुला घर का खर्चा उठाते और राशन दिलवाते थे। नीज उन घर वालों को भी मालूम नहीं था कि उन पर सखावत करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। इसी तरह आयाहुल उलूम में और बुजुर्गों के वाक़यात भी हैं जो ज़कात और खैरात वगैरह चुपके से गरीबों को पहुंचा दिया करते थे और उनके घर में डलवा दिया करते थे। आजकल तो हाल ये है कि नेकी कम करते हैं और ढोल भरा मचाते हैं। नेकी छोटी होती है लेकिन उसे बहुत बड़ी नेकी के तौर पर बयान कर रहे होते हैं। बल्कि ऐसे भी होते हैं जो नेकी करते ही नहीं लेकिन बगैर नेकी के ही दिखावा कर रहे होते हैं। सवाल, आजकल घरों में सदका खैरात के नाम पर जो बकरियां बैल वगैरह काटे जाते हैं उनका गोश्त घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ये किसी गरीब को देना पड़ता है। जवाब, ये आमतौर पर नफल सदके होते हैं। जो बच्चा बीमार हो जाता है तो उसका सदका निकाल देते हैं। ये अच्छा और नेक काम है। इसका गोश्त अगर गरीबों में बांटा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर मालदारों को खिला दिया जाए या खुद खा लिया जाए तब भी कोई गुनाह नहीं। आमतौर पर सदका उसे ही कहा जाता है जो गरीबों को दिया जाता है। हाँ, अगर वाजिब सदका है तो वो सिर्फ गरीबों के लिए ही होता है। सवाल, क्या मिस्कीन तक सदका पहुंचाने पर भी अजर है? जवाब, जी हाँ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक रोटी के एक लुकमे या एक खजूर या उसकी मिसल किसी मस्कीन को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ की वजह से 3 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 1, वो शख्स जिसने सदके का हुक्म दिया। नंबर 2, बीवी जिसने इस लुकमे को तैयार किया। नंबर 3, वो खादिम जिसने ये सदका मस्कीन तक पहुंचाया। तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए हैं जो हमारे खादमों को भी महरूम नहीं करता। एक और हदीस पाक में है, सदका अगरचे 70,000 हाथों में से गुजरे तब भी आखिरी शख्स का अजर पहले सदके करने वाले के अजर की तरह होगा। सवाल, क्या वालदैन या दीगर मरहूमीन के नाम पर कपड़े या बर्तन खैरात किए जा सकते हैं? जवाब, कपड़े और बर्तन खैरात कर सकते हैं, अलबत्ता यही खैरात करने वाले को फर्ज या वाजिब ना समझा जाए। सवाल, क्या वालिद अपनी औलाद को सदका दे सकता है? जवाब, वालिद अपनी औलाद को ज़कात और फितरा नहीं दे सकता, अलबत्ता तोहफा और इनाम दे सकता है। सवाल, क्या मैं अपने बच्चे का अकीका करने के बजाय इस जानवर की रकम किसी फलाही तंजीम को दे सकता हूँ? जवाब, इसकी इजाज़त मिली तो फिर कहेंगे कि कुर्बानी करने के बदले कुर्बानी का जानवर, या इसकी रकम किसी गरीब को दे दें, हज करने के बजाय किसी को पैसे दे दें, फिर मसाजिद भी ना बनाएं, गरीबों को दे दें। ऐसा नहीं होगा। शरीयत ने जो तरीका बताया है वो ही करना होता है। बकरा तो 10-15 हज़ार का आजकल आता होगा, इससे गरीबों का क्या होगा?
گھر میں جو ڈیکوریشن کی چیز ہوتی ہے وہ اور 2-4 صوفے بیچ کر غریبوں کو دیں۔ گھر میں 10 کمرے ہیں تو 1 آدھ کمرے کا حساب لگا کر غریبوں کے حوالے کر دیں تاکہ غریبوں کا کچھ تو بنے۔ بہرحال عقیقہ کرنا ہے تو اس میں قربانی کے جانور کی شرائط کے مطابق جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، تبھی یہ مستحب ادا ہوگا۔ عقیقہ مستحب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ سوال: کیا فوت شدگان انسانوں کی طرف سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، فوت شدہ افراد کی طرف سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا، جیسے والد صاحب، دادا جان وغیرہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دیا، یا بارگاہ رسالت میں ثواب نذر کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کی، یا یہ مدد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کر رہا ہوں، یا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کر رہا ہوں، اور اس طرح ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔